सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जोहार। वी विल conclude and we will complete the remaining part of the discussion on accountability. Accountability, it is a mechanism to enforce the responsibility. So responsibility को इंश्योर करने का जो मैकेनिज्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Accountability. Accountability, the literal meaning of accountability is the answerability. Now answerability for what? Answerability उसको हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं? थ्रू द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, थ्रू पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एंड वी हैव टेकन द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टेकन द व्यू पॉइंट्स दैट ऑफ द जबरा एंड द्विवेदी। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि वी हैव द 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। We have political accountability, then we have the judicial accountability, we have professional accountability, we have organizational accountability, we have the legal accountability. Now फिर हमने देखा था the few points given by the Professor Bruce Stone. तो ब्रूस स्टोन ने भी उन्हीं आइडियाज़ को हाईलाइट किया which had been highlighted by the Jabra and Dwivedi. Now let us take further, और कल हम लोगों ने कहाँ पर अपने क्लास को एंड किया था कि that we will take up now the changing dynamics and the changing profile of the accountability. कि accountability समय के साथ कैसे चेंज हुआ अभी के टाइम में, जिसको हम लोग गवर्नेंस एरा से मार्क करते हैं। टुडे वी आर लिविंग इन विच टाइप ऑफ कंडीशंस? टुडे वी आर लिविंग इन अ एरा which is characterized through the governance paradigm. Today we are living in an era which is characterized through NPM school, that is called Neo Public Management Schools. So that is called, in this neoliberal marketized governance era, let us try to understand कि क्या accountability system की बढ़ी है, क्या executive control बढ़ा है, या फिर accountability increase हुआ है कि accountability compromise हुआ है। So we will take up this the changing dynamics or the changing notion of accountability, the changing profile of the accountability. ठीक है, so इस aspect को हम लोग पहले कवर करेंगे। और जब हम लोग changing notion की भी बात करते हैं तो यहाँ पर we will take up the viewpoints of another very important thinker, that is the Professor Huck. The Professor Huck actually tried to visualize and he tried to explain in a very comprehensive manner that how the accountability got changed in the coming time with the different stages of time, और अभी के टाइम में क्या अकाउंटेबिलिटी के कंडीशंस हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी की डिग्री है, क्या अकाउंटेबिलिटी का ऑर्डर है। तो प्रोफेसर हक के व्यू पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज द टॉपिक टुडे? ना आज का टॉपिक है द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ओके, द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, जब हम इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे थे, तो लेट्स हैव ए क्विक रिविजिटिंग ऑफ द पॉइंट्स कि जब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशनरी फेज को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, दैट इज द 1950 to 60, that 1960 to 70s, the 1970s to 80, the 1980 to 90, and the 90 onwards. We generally classify the evolution of the discipline, and ये classification है, this evolution, this is basically given by the Nicholas Henry. So Nicholas Henry के according जो evolution है public administration का, वो approach, the focus area around 50s and 60s, it was basically the DA, that is development administration. The 60s and the 70s, that comparative public school started, that is called CPA, और यहाँ पर Fred Riggs become very important. Rigshian model
ये काफ़ी एक्सेप्टेबल होते चला गया एंड दिस 60-70 इज कैरेक्टराइज थ्रू द CPA कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब अलग अलग कंट्री में हम लोग गुड गवर्नेंस में क्या देखा था और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय DA। DA एक वेस्ट का कंस्ट्रक्ट है, आइडिया है, एक क्रिएटेड आइडिया है, और लेकिन इसका मीनिंग रिलेवेंस क्या है इन द डेवलपिंग कंट्री। DA का मतलब क्या था कि इट इज इन सिंपल वर्ड स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ये था। और हम लोग ऑलरेडी इसमें क्लास कर चुके हैं, तो DA इसके बहुत बड़े डायमेंशंस में बात किए हैं हम लोग। अब आगे जब चले तो 70s एंड 80s के टाइम में वी टेक अप कि इस समय न्यू राइट फिलॉसफी का शुरुआत होता है ना। 70s एंड 80s इट वाज अ टाइम जब न्यू राइट फिलॉसफी NRP की शुरुआत होती है, और 80s एंड 90s के टाइम में आके वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुरू होगा। द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये जो CPA हम लोग बात कर रहे हैं द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिक्लाइन हो जाता है 77-80s के आसपास, तो फिर से जर्मिनेट होता है 80s एंड 90s में, और इसका नया अवतार को क्या बोलते हैं, NCPA। न्यू राइट फिलॉसफी यहाँ जो शुरू होता है, जो क्या बातें करता था, कल मैंने बताया था द NRP द न्यू राइट फिलॉसफी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग मोर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। इसी एपिसोड को क्या कहा गया था, स्टेट मिनिमलिज्म। नाउ इस थ्योरी के बैकड्रॉप में वर्ल्ड वाइड रिफॉर्म प्रोजेक्ट शुरू हो गए। हर कंट्री में अपने इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज माने रिफॉर्म करना शुरू किया। तो इस तरह से जो ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू हुआ दैट इज गिविंग मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर, रैशनलाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड NPM। इसी को क्या कहा जाता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। NPM फुल फॉर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जब भी मैनेजमेंट टर्म आएगा इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर इज गेटिंग मोर एंड मोर रोल। ना धीरे धीरे फोकस क्या होते चला गया है कि प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा यूजर फी के बेसिस पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉन्सेप्ट है, जो कंटेक्स्ट है, सिटीजनशिप किधर शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर की ओर। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से किधर शिफ्ट हो रहा है, इकोनॉमिक वैल्यूज। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ा साइडलाइन हो जाएगा, अब क्या फोकस होगा, प्रॉफिट मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो आइडियाज़ हैं, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इसके ऊपर में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यूज, प्रॉफिट, है ना, प्राइवेट सेक्टर गिविंग मोर एंड मोर प्लेयर। ये 80s एंड 90s के टाइम में होता है एंड दिस इज कॉल्ड NPM। दिस इज नथिंग बट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और 90s के बाद वी जनरली कॉल इट गवर्नेंस पैराडाइम। We generally called this governance era. Why governance era? कि that धीरे धीरे शिफ्ट होते चला गया, that is धीरे धीरे फोकस पे कौन आ गया, कस्टमर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सर्विसेज डिलीवरी टू द कस्टमर, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ डिफरेंट एजेंट्स कम, प्राइवेट सेक्टर कम, पब्लिक सेक्टर कम, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सब लोगों का काम क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो दैट इज वाई द स्टेक होल्डर अप्रोच इज फॉलोड, मल्टी स्टेक होल्डर, सब लोग मिलके क्या काम करना है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। सो दिस इज कॉल्ड ए इंक्लूसिव मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच, सिर्फ फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल तरीके से, दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस, मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच। इसकी शुरुआत कब होती है, 1990s ऑनवर्ड्स। तो ये जब प्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि स्टार्टिंग में ये DA या फोकस कुछ और है, CPA में फोकस कुछ और है, NRP में फोकस कुछ और है, NPM में फोकस कुछ और है, गवर्नेंस में फोकस कुछ और है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जब इस समय स्टेट का रोल क्या था, कंट्रोलर, लेकिन जब NRP के बाद स्टेट का रोल क्या हो गया, फैसिलिटेटर। कल बताए थे, इसके लिए स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्टेट इज नाउ एक्टिंग एज अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर। स्टेट इज स्टीयरिंग नॉट द रोविंग। रोविंग मतलब जैसे कोई मान लीजिए आपका कोई बोट है, तो बोट में कैसे होता है, वो चप्पू भी चला रहा है और अपना नाव भी आगे बढ़ा रहा है, तो सब काम कौन कर रहा है, स्टेट। वही है वेलफेयर स्टेट। लेकिन स्टीयरिंग का मतलब जैसे बस हैंडल पकड़ के रहो, किस डायरेक्शन में जाना है, वो गवर्नमेंट का रोल है।
वो इंजिन्स है, वो अलग अलग पार्टिसिपेंट है, उस पूरे मशीनरी को, उस पूरे नाव को खींचेगा। दिस इज कॉल्ड स्टीयरिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो लेट्स टेक फर्दर, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर हक का क्या व्यू पॉइंट है। प्रोफेसर हक, so Professor Huck say that in the era of NPM and good governance time, the accountability of the system has compromised, है ना। Professor view basically started from negative aspect of the accountability. He taken the negative aspect of the accountability. Negative aspect of the accountability. How the negative aspect? He say कि where there is the liberty, लोगों के पास देखो जस्टिस का इशू है, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी में इतना टाइम लगता है कि दैट जस्टिस डिलेड इज समटाइम जस्टिस डिनाइड, ठीक है। देयर इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग का इशू हो रहा है, देयर इज कॉल्ड मेजोरिटारियन वर्सेस माइनॉरिटारियनिज्म हो रहा है। तो हाउ वी कैन से कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, जैसे हम लोग आसपास अभी देखते हैं, ठीक। सो प्रोफेसर हक ने नेगेटिव व्यू पॉइंट से शुरू किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द accountability is compromised in the era of NPM and good governance. NPM अब समझ में आ रहा है कि नेगेटिव व्यू पॉइंट में लिखें the accountability has been compromised. Accountability has been compromised. Has been compromised. Accountability has been compromised. मतलब इसी तरह से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक हैंड में तो बोलते हैं कि वी आर इन ए लिविंग इन ए वर्ल्ड विच इज कैरेक्टराइज थ्रू ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम में बात कर रहे हैं। बट अभी आपकी बाइक चोरी हो जाएगी तो ट्रेस करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देयर इज कॉल्ड फ्यू पीपल्स, कहीं पर मॉब लिंचिंग हो गया तो उसको कैसे कंटेन किया जाए, वेयर इज द गवर्नमेंट, है ना। अभी भी हम लोग देखते हैं कि देयर आर सर्टेन ऐसे छोटी छोटी बातें होती है, लेट से किसी रूरल एरिया में रोड्स है तो रोड बनना रूरल एरिया में पॉलिटिकल मैंडेट हो जाता है। जब इलेक्शन आएगा उसको मुद्दा बनाया जाएगा, इलेक्शन जीत गए, फिर वो रोड 5 साल तक ऐसे की पड़ा ही रहा। वेयर इज द गवर्नेंस, वेयर इज द डेवलपमेंट। तो प्रोफेसर हक किसी को बोलते हैं कि वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, मैंने 5 साल से 1 किलोमीटर का रोड नहीं बन रहा है, ठीक। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, जब स्कूल्स हैं, स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, एक टीचर और पैरा टीचर के बदौलत गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहा है, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, व्हाई नॉट द टीचर्स आर रिक्रूटेड। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, जो किसने हाईलाइट किया, द प्रोफेसर हक ने हाईलाइट किया, राइट। सो ही से कि द अकाउंटेबिलिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इन द एरा ऑफ NPM and the good governance. NPM and the good governance. NPM good governance आप समझ रहा है। तो ही से कि दैट जब अपने थ्योरी को बिल्डअप कर रहे थे तो ही डिस्कस्ड हिज थ्योरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली टेकन द 3 डायमेंशंस, है ना। सो अपने इसको आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं कि दैट ही वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डेल्ट, that is he very comprehensively dealt with 3 dimensions. 3 dimensions. उन्होंने 3 डायमेंशंस पे बातें करी कि किस तरह से आज के दिस न्यू लिबरल दैट इज कॉल्ड NPM गुड गवर्नेंस टाइम में कॉम्प्रोमाइज हुआ है अकाउंटेबिलिटी का। तो 3 डायमेंशंस पे बात करते हैं। व्हाट आर द 3 डायमेंशंस? नंबर 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि मतलब अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट, राइट। इसको सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे, अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट, है ना। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन फिर वो बातें करते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, राइट। एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या डिस्कस करते हैं, द अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम, किसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम,
क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबिलिटी, लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी, किसी मिनिस्टर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी, किसी पर्सनालिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी, किसके लिए अकाउंटेबिलिटी, इसकी बातें करते हैं किसमें, द अकाउंटेबिलिटी में, एजेंट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी या एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। थर्ड एस्पेक्ट ही डिस्कस दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मेथड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहां क्या बातें करते हैं कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हाउ मीन्स हाउ अकाउंटेबिलिटी। तो तीनों डायमेंशन से डिस्कस करते हैं अकाउंटेबिलिटी का कि अभी के टाइम में अकाउंटेबिलिटी किस तरह से चेंज हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए, क्या डेमोक्रेसी के लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, क्या लिबर्टी के लिए, क्या इक्वालिटी के लिए, कि बस प्रॉफिट मेकिंग के लिए। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट। दूसरा अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम, मतलब एजेंट्स क्या, सॉरी अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम का मतलब किसके लिए, राइट। एंड थर्ड एस्पेक्ट मेथड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्या किस तरीके से, क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल के थ्रू, ट्रिपल P मॉडल के थ्रू, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू, अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से। तो तीनों डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, एक एक करके थोड़ा समझेंगे तब हमारा बेटर पिक्चर क्लियर होगा। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट। So Professor Huck discussed accountability for what? So he discussed with the help of changing profile of the state, है ना? He discussed with the help of changing profile of the state. He discussed with the changing profile of the state. He discussed with the help of. He discussed with the help of changing profile of the state. Changing profile of the state, ठीक है, कि किस तरह से स्टेट का नेचर जैसे जैसे चेंज हुआ, एग्जीक्यूटिव्स का भी नेचर और इस तरह से चेंज हुआ। दैट इज कॉल्ड द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का नेचर कैसे चेंज होता है। सो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम, सो वी कॉल इट कि 1947 to 1991, 1947 to 1991 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं, एंड देन 1991 to 2024 ये एक टाइम फ्रेम है जिसकी बातें कर रहे हैं अपन लोग। सो 1991 के पहले इंडिया की बातें करेंगे। सो इन केस ऑफ इंडिया स्टेट को कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, स्टेट इज ऑल अबाउट, दिस इज योर स्टेट एंड दिस इज योर प्राइवेट सेक्टर, कल भी बताया था ये चीज, एंड दिस इज योर प्राइवेट सेक्टर, राइट। अब जब 2024 की बातें करेंगे, सो नाउ स्टेट, नाउ दिस इज योर प्राइवेट सेक्टर, दिस इज योर स्टेट, and now this is the private sector. ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स लिखें कि the role of the state here is the controller, that is regulator, और यहां पर रोल ऑफ द स्टेट अब कैसा हो गया, दैट इज फैसिलिटेटर। इस जगह पे 1991 के पहले द स्टेट कैसा है, रोइंग है, अभी स्टेट कैसा है, दैट इज द स्टीयरिंग। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। नाउ लेट अस ट्राई टू एलाबोरेट अ लिटिल बिट। सो टिल द 1947 टिल द 1991 इस पूरे पीरियड में इंडियन स्टेट्स की बातें करेंगे तो स्टेट इज ए वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट है, इसका मतलब स्टेट विल टेक अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी चीज चाहिए फॉर द वेलबिंग टू द सोसाइटी, टू द सिटीजन, दैट विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट। द स्टेट कैसा है, स्टेट इज द वेलफेयर स्टेट, Now, private sector is not capable. ठीक है, private sector is not capable. Private sector has not financial
autonomy, not the very sound financial administration, not very sound capital. So that is why private sector cannot take the very task. लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अंडर द स्टेट, अंडर द वेलफेयर स्टेट। तो जो गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया, सो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करना शुरू किया? सो स्टेट किस तरह के रोल पे आया? कंट्रोलर। स्टेट सब कुछ करते चला जाएगा एंड स्टेट में किस मॉडल से काम करेगा? द स्टेट लेड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो यहां पर किस चीज की बातें करेगा? दैट इज स्टेट लेड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, स्टेट लेड द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। और इस समय स्टेट के जो पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ऑब्जेक्टिव क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मीन्स लाइक द डेमोक्रेसी, लाइक द लिबर्टी, है ना, लाइक लिबर्टी एटसेट्रा। सो स्टार्टिंग में स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलबींग टू द सोसाइटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू? ना डेमोक्रेसी लाना है, पार्लियामेंटरिज्म लाना है, लिबर्टी लाना है, इक्वालिटी लाना है, सेक्युलरिज्म लाना है, मतलब गाइडेड बाय द वैल्यूज यानी थॉट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट इस समय काम कर रहा है और फॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट लेड मॉडल है। तो यहाँ अप्रोच कैसा है? फॉर्मल। ना तो प्राइवेट सेक्टर बहुत कैपेबल है, ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है, ना इंडस्ट्री बहुत कैपेबल है, ना एनजीओज बहुत कैपेबल है। सो दैट इज वाई जो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क, यू कैन कॉल ऑल द टास्क ऑलमोस्ट, इज टेकन केयर बाय द स्टेट। और ये किस तरह का स्टेट में चल रहा है? वेलफेयर स्टेट। लेकिन वेलफेयर स्टेट्स का जो डिमेरिट है वो 80s तक आते आते दिखना शुरू हो गया, और यूँ कहें 1970s तक आते आते वेलफेयर स्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो 1970s एंड 80s में क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ? पहला, नैनी स्टेट सिंड्रोम। नैनी स्टेट सिंड्रोम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस नैनी स्टेट सिंड्रोम? ना स्टेट प्रॉमिसेस अ लॉट, मतलब सब कुछ हम करेंगे, रोड, पेन, मार्कर, पेंसिल, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, जो भी चाहिए वो सब स्टेट प्रोवाइड करेगा। सो द पीपल बिकम डिपेंडेंट। सो दैट गवर्नमेंट फ्रीबीज, लोग फ्रीबीज पे जीने लगे, एक डिपेंडेंसी में जीने लगे। तो लोग अपना जो स्किल है, अपना टेम्परर है, अपनी कॉम्पिटेंसी, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लगे। तो एक हैंड में नैनी स्टेट सिंड्रोम, जैसे नानी होता है ना, उसी तरह से डिपेंडेंसी हो गया। तो डिपेंडेंसी हो गया तो जिसके चलते स्किल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम हुआ कि परफॉर्मेंस में स्टेट फेल होते चला गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया? दैट इज द सेकेंड प्रॉब्लम इज द एलिमेंट ऑफ द करप्शन। एलिमेंट ऑफ करप्शन क्यों? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से काम हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना रूल मेनियक ब्यूरोक्रेसी हो गया। शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। तो इस तरह से द मिसयूज ऑफ पावर स्टार्ट हो गया एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन स्टार्ट होते चला गया, ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक स्टार्ट शुरू हो गया। क्या हो गया? द ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस, ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस, राइट। तीसरा प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया? इसी टाइम पे चूंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द सुपर मास्टर, दे आर द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव्स, रियल एग्जीक्यूटिव। सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना ही ऑब्जेक्टिव होते चला गया। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जब आप बातें करेंगे, दैट इज 80s के पहले क्या शुरू हो गया? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जब शुरू हो गया तो अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया? और कॉम्प्रोमाइज हो गया। तीसरा और क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्टर परमिट राज, इंस्पेक्टर परमिट राज, ये सब शुरू हो गए थे। तो दीज आर द लिमिटेशंस स्टार्टेड विद द वेलफेयर स्टेट। तो इन कंडीशंस में द पीपल्स, दैट इज कॉल्ड, जो सुप्रीम मास्टर है, उसके वैल्यूज, उसके एक्सपेक्टेशन, उसके नीड्स कॉम्प्रोमाइज होते चले गए। स्टेट प्रॉमिसेस अ लॉट बट डिलीवर्स अ लीस्ट। तब 70s 80s के बैकड्रॉप में शुरू होता है क्या ना, वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन में रिफॉर्म्स, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी रिफॉर्म्स हुए। और 1991 में यू बेटर नो दैट क्या होता है, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स। सो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद
क्या हुआ, स्टेट के रोल को रीडिफाइन किया गया और स्टेट के रोल इसी एपिसोड को क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट. दिस इज कॉल्ड द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट. ठीक, द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट में इंडियन इकोनॉमी इज ओपन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. So what is this process of globalization? That is, India become a part of economic wave. So चूंकि इंडिया एक इकोनॉमिक वेव का पार्ट हो गया, so that is why India also become part of global constitutionalism. So India also become part of the global constitutionalism. Global constitutionalism. ठीक है कि अब सिर्फ इंडिया के ऊपर में इसके डोमेस्टिक लोगों का ही प्रेशर नहीं, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF और OECD, इन ऑर्गेनाइजेशंस के भी प्रेशर्स आने लगे. सो दैट इज व्हाई ना कंज्यूमर, क्योंकि ऑल द प्रमोट कंज्यूमरिज्म, सो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज व्हाई धीरे धीरे किस चीज पे फोकस होना शुरू हो गया, सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी to the customer, to the consumer, है ना, सर्विस डिलीवरी टू द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर माने कस्टमर. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम पैरामाउंट. ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए अब एक प्लेयर हो गया गवर्नमेंट. पहले सोल प्लेयर होता था गवर्नमेंट, एक प्लेयर हो गया प्राइवेट सेक्टर, एक प्लेयर हो गया क्या, दैट इज कॉल्ड NGO, एक प्लेयर हो गया क्या, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर हो गया दैट इज कॉल्ड लेट्स से और भी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इस तरह से वुमेन ग्रुप, राइट्स ग्रुप, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, ऑल दे आर वर्किंग टुवर्ड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर. सो दैट इज व्हाई ये शिफ्ट किस पे चला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से शिफ्ट अब किधर चला गया, इकोनॉमिक वैल्यूज. इकोनॉमिक वैल्यूज. तो प्रोफेसर हक इसी को बोलते हैं कि सिंस नेचर ऑफ स्टेट्स गॉट चेंज्ड, क्योंकि स्टेट का नेचर चेंज हो गया, एक स्टेट पे ऐसे कंट्रोलर से अब स्टेट कैसा हो गया, फैसिलिटेटर, एक रोविंग से अब क्या हो गया, स्टीयरिंग हो गया. सो दैट इज व्हाई जो फर्स्ट एस्पेक्ट है ना कि दैट अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट, वो भी चेंज हो गया. पहले अकाउंटेबिलिटी किसके लिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस के लिए, लेकिन अब जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसके लिए है, वो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यूज के लिए हो गया और दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हो गया. सो यहां पर एक लाइन लिखें कि दैट यू सिंपली राइट So you simply write according to Professor Huck, according to Huck, since the nature of state, since the nature of state, the changed from है ना, steering to controller to facilitator. Nature of state change from the controller to facilitator. The accountability also shifted from constitutional values, shifted from the constitutional values to customer satisfaction, customer satisfaction. ठीक है, तो प्रोफेसर हक के अकॉर्डिंग ये जो शिफ्ट है
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये अकाउंटेबिलिटी का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। थोड़ा सा समझ में आया। सेकंड एस्पेक्ट की बातें करते हैं, दैट इज एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ना। अब वो बातें करते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम। सो दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ ए डिस्कशन, दैट इज अकाउंटेबिलिटी फॉर हुम ना। पहले अकाउंटेबिलिटी किसके लिए था? अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल एट लार्ज, अकाउंटेबिलिटी टू एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी कैसे शिफ्ट होते चला गया? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आज हम लोग किस चीज पे बातें करेंगे? सो यू कैन सिंपली राइट डाउन हियर फ्यू लाइन्स। दीदी here accountability for whom? So the agents of accountability shifted, agents for accountability, agents for accountability shifted, है ना? That is agents for accountability shifted from the ethos of constitution to that is called profit maximization, to profit maximization, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कमेंट भी करते हैं कि जैसे कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए लाइक सिटीजन्स चार्टर वगैरह, वो बेसिकली एक मिसनोमर है। तो सिटीजन्स बेसिकली अब फोकस है ही नहीं, अब फोकस कहाँ है? कस्टमर। तो कल मैंने सिटीजन और कस्टमर में डिफरेंस बताया था कि कस्टमर इज बेसिकली व्हाट? इकोनॉमिक टर्म, सिटीजन पॉलिटिकल टर्म है। सो दैट इज वाई ही से कि दैट द इनिशिएटिव जो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, अकाउंटेबिलिटी के लिए लाया गया, बेटर गवर्नेंस के लिए लाया गया, ये बेसिकली एक लॉपसाइडेड कॉन्सेप्ट है, ये आइडियल, दैट इज कॉल्ड आइडियल मॉडल है। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या मिलता है? इट इज सिम्स टू बी मैनेजर्स चार्टर। तो जब सिटीजन चार्टर के लिमिटेशंस बताए थे हम, ठीक है। सो यहाँ पर एक लिखे कि दैट ही ऑल्सो बिकम क्रिटिकल, ही ऑल्सो बिकम critical while saying that initiatives like citizens charter, are मिसनोमर, है ना? मिसनोमर का मतलब जिसका नाम कुछ अलग है, मीनिंग कुछ अलग है, दैट इज कॉल्ड मिसनोमर। जैसे बोलते हैं ना ज्योग्राफी में वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्ली क्या बताता है कि वेस्ट से आ रहा है, लेकिन वेस्टर्लीज बेसिकली मिसनोमर है, वह वेस्ट ऑफ वेस्ट है ना? सो सेम एज ही से that is called, he also become critical while saying that कि initiatives like the citizens charter are misnomer. Basically these are managers charters, basically these are managers charters, these are managers charter. तो इसकी बातें हम लोग ऑलरेडी सिटीजन चार्टर में कर चुके हैं। अब थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि पहले प्रोफेसर हक क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब दैट इज व्हाट? अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट? तो चूंकि स्टेट का नेचर ही चेंज हो गया, सो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी भी शिफ्ट होगा। तो उन्होंने डिस्कस करी किस तरह से एक रोइंग स्टेट से एक स्टीयरिंग स्टेट में अभी काम कर रहा है, किस तरह से एक वेलफेयर स्टेट से अभी किस तरह से न्यू लिबरल स्टेट में काम कर रहा है। सो दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी भी शिफ्ट हुआ, और इसको प्रोफेसर हक कमेंटेड कि इट इज कॉम्प्रोमाइज विद अकाउंटेबिलिटी। ठीक, सेकेंड एस्पेक्ट बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर होम। यहां बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बेसिकली शिफ्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस वैल्यूज से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की ओर। सो दैट इज वाई सिटीजन से शिफ्ट हो गया कस्टमर की ओर। तो जो इनिशिएटिव्स लिए गए लाइक राइट टू एजुकेशन इंफॉर्मेशन एक्ट, दी सिटीजन्स चार्टर एक्ट, जो कि राइट टू पावर, जो सिटीजन के एम्पावरमेंट की बातें करता है, वो बेसिकली मिसनोमर है।
वो एक्चुअली में ये मैनेजर्स चार्टर है, ये बेसिकली व्हाट दैट इज कॉल्ड द इलिट क्लास चार्टर्स है। सो दैट इज वाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को, आंसरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। समझ में आया कुछ? लास्ट पॉइंट पे बातें करेंगे, दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट इज मेथड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो मेथड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी मीन्स हाउ अकाउंटेबिलिटी, ये बातें करते हैं, दैट इज हाउ अकाउंटेबिलिटी। तो अभी के टाइम में अकाउंटेबिलिटी कैसे देखते हो आप? अकाउंटेबिलिटी का मतलब जैसे कोई पीएसयू उठा के देख लो आप। सो यू आर सेइंग कि जैसे एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो गया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स द प्राइवेट सेक्टर आर गिविंग मोर एंड मोर स्पेस। सेल की बातें कर लो तो अभी देख लो कि जैसे जैसे इंजीनियर ट्रेनी, इस तरह के जो इंडक्शन रिक्रूटमेंट होते थे वो बहुत कम हो गए हैं। दैट इज कॉल्ड, जो आपको 80,000 एक इंजीनियर ट्रेनी को दिया जाता था, अभी कॉन्ट्रैक्ट में उसमें 4 आदमी, उससे 4 उसको इंजीनियर्स मिल जाएंगे। सो द वर्किंग मॉडल गॉट चेंज्ड। अभी कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म पे काम हो रहा है, अभी आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है, अभी किस चीज़ पे और काम हो रहा है, ऑटोमाइजेशन पे काम हो रहा है। सो दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच अकाउंटेबिलिटी इज इंश्योर्ड। ठीक है, सो यहां पर एक लाइन लिखे, हाउ द अकाउंटेबिलिटी। ना अकाउंटेबिलिटी में चीजें लिखेंगे कि लाइक देयर आर सम वेज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, लाइक आउटसोर्सिंग, ठीक। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म, थर्ड you can write that is what the triple P model, fourth you can write that is your automizations, so in this way अभी के टाइम में काम यही सब तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है, ऑटोमाइजेशंस है और सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव है, बट एक्चुअली में वो क्या है, मैनेजर्स चार्टर, सिटीजन्स चार्टर। और क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करेंगे हम, ताकि एक बेटर फीलिंग्स हो कि दैट एक चीज तो क्लियर हो गया, वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड विच इज कैरेक्टराइज थ्रू व्हाट, एनपीएम अप्रोच, गुड गवर्नेंस टाइम, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट मिनिमलिज्म, ये सारे टर्म अब क्लियर हो गया कि जब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रोल देना, स्टेट का रोल कैसा है, स्टीयरिंग, स्टेट का रोल अब कैसा हो गया, स्टीयरिंग रेदर देन रोविंग, फैसिलिटेटर के जैसा। तो यहाँ पर जो काम करने के तरीके हैं वो कैसे हैं, आउटसोर्सिंग है। काम करने के तरीके क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, नॉट परमानेंट रिक्रूटमेंट, हायर एंड फायर पॉलिसी, द ट्रिपल पी मॉडल, ऑटोमाइजेशंस, द सिटीजन्स चार्टर, डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब करना। अभी देखो तो ये सारी चीजें आपके थर्ड एस्पेक्ट में प्रोफेसर हक डिस्कस करते हैं। तो एक बेसिक थीमेटिकली समझ में आया कि दैट इफ आई से द अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी के अलग अलग डायमेंशन से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। अकाउंटेबिलिटी इज ए मैकेनिज्म फॉर व्हाट, द मैकेनिज्म फॉर increasing the responsibility, increasing the answerability to the responsibility, इसी को हम लोग बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी। ना अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के बहुत सारे तरीके होंगे, लाइक legislative methods, executive orders, right, legislative method और बहुत सारे कंट्रोल्स। टुडे हम लोग जिस टाइम पे रह रहे हैं, आज हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको अच्छे से लिख लो, बेटर होगा कि लेट्स से वी हैव दिस अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत टाइप के अकाउंटेबिलिटी देखा, ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, बट इन जनरल वी कैन से किस तरह से आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटोरी लॉ, लाइक राइट टू RTI एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट,
और कोई भी जैसे ऑल इंडिया सर्विस रूल, ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स, ये सारे क्या है, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस हैं। देयर आर कॉल्ड द पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, जिसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बातें किए थे हम लोग, दैट इज पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस like question hour, 0 hour, calling attention motion, budgetary control, that is called financial control, financial control, है ना। जैसे बजट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो बजट में बोलते हैं ना कि बजट इज बोथ द पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड डी रोमिन्स, ये स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। सो वी हैव द फाइनेंशियल कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर में। देन और क्या कंट्रोल्स है अभी के टाइम में, दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक कंट्रोल, मतलब कंट्रोल फ्रॉम विद इन एज वेल एज आउटसाइड, दैट इज सुप्रा नेशनल, माने ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाट आर द अनदर कंट्रोल, और कैसे अकाउंटेबिलिटी, दैट इज डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल। और क्या हो सकते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स लाइक that is called non-governmental organizations, that is called self-help groups, that is called human rights organizations, human rights organizations। और क्या हो सकता है, that is called the consumerism, consumerism, ठीक है। इस तरह से आप और अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं कि दीज आर द स्टेक होल्डर्स नाउ। सो अकाउंटेबिलिटी, इसको कोई बोलता है कि अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है एज पर द प्रोफेसर हक। लेकिन लेट्स कंक्लूड द टॉपिक एंड टेक अप ए समरी ऑफ दिस टॉपिक कि दैट आखिर अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। सो लेट्स समराइज, समरी, राइट। So there is another school who say कि no, with the digital governance, with the e-governance, with the that is more and more participation with the various stakeholders, actually में accountability increase हुआ है। Institutional accountability has increased, the vibrant citizenry में accountability कहीं ना कहीं increase हुआ है। So another school of thought say that who had taken the positive view, प्रोफेसर हक ने कौन सा व्यू लिया था, नेगेटिव व्यू लिया था। लेकिन समराइज कैसे करेंगे, सो यू कैन राइट हियर, दैट इज अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स या ए स्कूल ऑफ थॉट से, ए स्कूल ऑफ थॉट है ना, ए स्कूल ऑफ थॉट से इन द गुड गवर्नेंस एरा, इन द गुड गवर्नेंस एरा, in the good governance era, which is characterized through what, global constitutionalism, which is characterized through global constitutionalism, actually the accountability has increased, accountability has been increased, accountability has been increased, right, accountability has been increased. Today citizens are vibrant, citizens, or better to say customers are vibrant, customers are vibrant, systems are transparent, officials are trained, and with the institutional and with
the institutional caliber, the institutional caliber, institutional caliber, the accountability has been enhanced, accountability has been enhanced। आए समझ में? तो इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे और भी कुछ अच्छे लाइन्स आप लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। आई होप समझ में आया होगा। अकाउंटेबिलिटी दैट इज एन स्कोरिंग टॉपिक। वी हैड ट्राई टू कवर अप दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशन से बातें करा, स्टार्टिंग फॉर ए वेरी लेमिनस वे, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। Accountability means answerability. Accountability and transparency are the two sides of the same coin. Accountability through hierarchy बातें करा, accountability and control की बातें करा, types of accountability की बातें करी, then changing profile and changing notion of accountability के बारे में बात किया। And we had taken the Professor Huck's viewpoint कि how accountability has been compromised in one hand, but another school say कि that कुछ जैसे कि in the era of governance जब citizens vibrant हैं, जब एजुकेटेड अवेयर हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी है, डिजिटल गवर्नेंस है, एक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम लोग, एंड देन इस टाइम में जब लोगों का लिमिटेड गवर्नमेंट है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, वाइब्रेंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली द आंसरेबिलिटी भी ज़्यादा है। कुछ इनिशिएटिव्स जो सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स हैं, लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट, दैट इज कॉल्ड सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव्स। सो वी हैड सीन कि दैट द मोर एंड मोर पीपल्स आर अकाउंटेबल, दे आर sensitive to the service delivery. The people are intolerant and insensitive to their ineffective service delivery, maladministration, misgovernance, and that's why जो grievance redressal system है वो भी कहीं ना कहीं ठीक हुआ है। सो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के साथ ठीक होने के साथ साथ चूंकि पॉपुलेशंस का इतना ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू इन सम एक्सटेंट द गवर्नमेंट मे फेल, in some extent the other stakeholders may fail, in some extent some goods and services are not actually delivered and not targeted, but in nutshell we can say in general the accountability has been increased, but they recall things have to be done more, that is the miles to go ahead। ठीक है, सो ये था अकाउंटेबिलिटी के बारे में। आई होप चीज़ें समझ में आया होगा। यू कीप वॉचिंग द वीडियोज़, इसको फिर से रिवाइज करके देखेंगे आप, और जो भी नोट्स या क्लासेस में जो बताया उसको नोट डाउन कर लें, एक बार सुन लें, अपने लैंग्वेज में लिखें। आई थिंक हमने कोशिश करा है इसको समझाने का। तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी की क्लास हो चुकी, सिटीजन्स चार्टर कंप्लीट हो गया आपका, एक छोटा सा टॉपिक है सिविल सोसाइटी, फिर राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। अब गुड गवर्नेंस में आप अपने अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय, वेरी गुड लक फॉर द टाइम एंड जोहार आप सभी को।